Very warm good evening to all, my dear student. Before this class, we already discussed about the some of the uses of the metals and some of the non-metal. My dear student, today we have a topic that is a non-metals, generally noble metals. My dear student, before this noble metals, we already discussed about the noble gases. Okay, noble gases is a different and noble metal is different. It means noble gases they are does not react with the other element. It means their outermost octet is completely filled with their electrons. But here is we are talking about the noble metals. These are the noble metals that do not react with the other elements. Okay, so we will discuss each one of them. Firstly, we will discuss the reactivity series of the elements. So you can see here, sir, what is there? That is in potassium is an high reactive, that is in top. This is in decreasing order of the reactivity series. Number two, sodium. Both metals are very light metals and they are easily cut with a knife. Barium, that is in also decreasing level, and calcium and magnesium are floating metals in water. When the calcium and magnesium react with water, they are floating in the surface of the water. Why? Because when the calcium and magnesium are react with water, what will happen? Calcium hydroxide and hydrogen gas is released. Due to the evolution of the hydrogen, the calcium and magnesium float on the surface of the water. Let me see it. Calcium plus वाटर, मतलब कैल्शियम रिएक्टेगा वाटर के साथ में, तो कैल्शियम क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस इज काइंड ऑफ फ्यूल एंड हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट एलिमेंट. बेटा ये एक लाइटेस्ट गैस है जो क्या करेगी बेटा? कैल्शियम को इसके सरफेस पे लेके जाएगी वाटर के साथ. इसको डिस्कस करेंगे. वैसे क्या होगा बेटा अपने पास में मैग्नीशियम भी ऐसे इसके सरफेस पे जाएगी वाटर बीकर के अंदर. फिर बेटा अपने पास क्या है? एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम क्या करते हैं? एनोडाइजिंग एलिमेंट बनाती है. एल्यूमिनियम बेटा ऑक्सीजन के साथ में करके क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, थिक लेयर ऑन देयर सरफेस एंड डज नॉट react with the other element. It means protection from the corrosion. Okay, now zinc and iron, zinc and iron and aluminium, the three element are does not react with cold water and hot water. They are react with steam. बेटा सर ये स्टीम क्या है? मतलब वाटर वेपर के साथ में जब वाटर कौन सी फॉर्म में होगा बेटा? गैस की फॉर्म में होगा, तब जाकर तीनों एलिमेंट क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करते. डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. बेटा निकल एंड टिन बोथ आर कंबाइंड विद इन फॉर्म ऑफ द alloys. लीड इज अ लीस्ट नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. बेटा इलेक्ट्रिसिटी इजीली या हीट को इजीली कंडक्ट नहीं करता. हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल but it is placed in a metal. Why? Because hydrogen is electropositive element. ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और बेटा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ कॉपर एंड मरकरी एंड Ag, सिल्वर एंड Au, द फोर मेटल्स आर इन एन नेटिव प्लेस या नेटिव स्टेट में निकलती है बेटा. ये लिस्ट रेक्टिव मेटल्स है. मतलब ये बेटा जो है अपने नेचर में जो निकलती है ना बेटा, ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेगी, पहली बात तो. लेकिन अब बेटा जो डाउन में आपकी जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बेटा एसिड से बेटा हाइड्रोजन को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. रीजन? बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड मरकरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, सो दिस इज द रीजन. सो एवरी of the acid have an hydrogen common in it, but the least reactive metal does not replace the hydrogen from the acid. Now we will talk about the noble metals. Dear student, noble metals are not react with other element. स्पेशली अगर हम बात करते हैं बेटा नोबल मेटल की कैटेगरी में ये एलिमेंट्स आएंगे अपने, क्योंकि बेटा ये किसी से साथ में कभी रिएक्ट नहीं करते. लेट मी सी इट व्हाट काइंड ऑफ द मेटल्स आर देयर. सिल्वर नंबर 1 क्या बेटा अपने पास में? सिल्वर एंड गोल्ड. बेटा ये रिएक्ट नहीं करते. आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. तो बेटा देखो कहां रखा है? ये एकदम बॉटम में है, ये मतलब इसके सबसे नीचे, इसको कहते हैं बॉटम में रखा हुआ है. पहला पॉइंट हो गया बेटा आपका. सेकंड पॉइंट अपने पास क्या रखा है? दे आर अनरिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि बेटा ये रिएक्ट ही करती है. ओके, एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. इवन पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी बेटा ये.
एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, और एल्काइल मतलब बेसिस के साथ में रिएक्ट नहीं करती, मतलब ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी बेटा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स। ओके, थर्ड पॉइंट अगर बात करते हैं बेटा अपन डिस्कस, देयरफॉर इसलिए अकर इन अ फ्री स्टेट, मतलब बेटा ये फ्री स्टेट में होती है, किसी के साथ में कंबाइन नहीं होती, कहां पर, अपने नेचर के अंदर, मतलब अपने एनवायरमेंट के अंदर जहां ये फाउंड होती है। फोर्थ बात करते हैं, दे आर नॉन एज नोबल मेटल, इसलिए बेटा इनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल, अनरिएक्टिव होने की वजह से। फिफ्थ बेटा बात करते हैं प्लेटिनम, हैज एन सिमिलर प्रॉपर्टी एंड इज आल्सो नोबल मेटल। बेटा प्लेटिनम भी किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता, तो बेटा ये प्लेटिनम मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लेटिनम बेटा क्या एक यूनिक एलिमेंट है, और बेटा इससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ऑर्नामेंट्स मींस ज्वेलरी बनती है। जनरली जो ज्वेलरी आपको जो पता है वो किसकी बेटा, एक तो गोल्ड और दूसरा सिल्वर, लेकिन बेटा प्लेटिनम कॉस्टली होता है, और इन दोनों से कॉस्टली होता है बेटा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के बारे में आपको बहुत कम बताया जाता है, लेकिन प्लेटिनम भी बेटा क्या होता है, एक तरह का आपका नोबल मेटल है। एंड प्लेटिनम आल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द या मेकिंग ऑफ द ऑर्नामेंट्स। बेटा जब आप अपने पास जो यूनिक जो चीजें बेटा वो पढ़ लेते हैं, द नोबल मेटल्स आर मेनली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ध्यान रखना बेटा, ये नोबल मेटल मतलब जो रिएक्ट करती है उनके क्या बनती है बेटा, ज्वेलरी बनती है। फिर दे रखा है एज दे आर अनरिएक्टिव, क्योंकि बेटा ज्वेलरी क्यों, जैसे कि मैंने ये सिल्वर पेन रखा है ये, ठीक है, तो ये ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी है तो बेटा ये क्या है, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ में, तो बेटा इससे क्या हो, ये अनरिएक्टिव है। द ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम देम डू नॉट लूज देयर शाइनी सरफेस इजीली। तो ये सिल्वर का जो बेटा मेरे पास जो कड़ा है, ये बेटा अपना शाइनी सरफेस इजीली लूज नहीं करता। और इवन आपने देखा होगा जनरली जो फीमेल्स होती है बेटा वो ज्वेलरी पहनती है गोल्ड की, तो उनका शाइनिंग, जैसे अपन परचेज करते हैं उस समय का शाइनिंग सरफेस, और बेटा जो अपन देखते हैं उनके आफ्टर 2 and 3 years और 5 years they are does not be lose their shiny surface. That is the reason, that's why they are used for the making of the jewelry. नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं किसकी, ये गोल्ड अपने पास। तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ एलिमेंट आर यूज टू गिव डेकोरेटिव। बेटा इनसे क्या होता है, डेकोरेशन होता है। सर डेकोरेशन क्या करने जाते हैं अपन, बेटा अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर बेटा स्वीट्स के अंदर इसके ऊपर डेकोरेशन करवाया जाता है। सर गोल्ड का डेकोरेशन क्या होता है बेटा, गोल्ड का डेकोरेशन बेटा जो अपना, अगर आप देखोगे कोई ऐसा रूम होता है या ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम या फिर किसी लॉन्च के अंदर आप किसी होटल के अंदर जाते हो, या फिर बेटा आप अपने रूम के अंदर जाते हो, तो रूम के अंदर बेटा बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती है जिनके ऊपर क्या किया जाता है बेटा, गोल्ड का पेंट किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि बेटा गोल्ड इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, द पेंटिंग बिकम्स एन attractive. That is why the gold isn't used to for polish or decoration, decorate the paintings or statues. Now protective, दूसरी चीज क्या बेटा डेकोरेशन में काम आता है ये गोल्ड और सिल्वर, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन देयर अदर मेटल, क्योंकि बेटा इसकी पॉलिश की जाती है ताकि दूसरी मेटल क्या ना हो जाए, कोरोड ना हो, वो खराब ना हो। बाय द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेटा इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है किसकी, गोल्ड की और सिल्वर की। दिस इज द more importance of the noble metals in our syllabus. So dear student, you should know this, the main importance of the noble metals. Now we will talk about the next of the some of the point. Platinum is used in electrical gadget. बेटा अपन ने बात की थी प्लेटिनम, प्लेटिनम के बेटा कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनते हैं। सर वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में काम आता है, इसका रीजन बेटा सिंपल रखा अपने पास में, द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड मेजर आर मेड बाय द प्लेटिंग और iridium alloys। तो बेटा बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर प्लेटिनम काम आता है, लेकिन आप बेटा इससे अवेयर ज्यादा नहीं हो। उसके बाद अगर बात करते हैं बीइंग, अब बेटा देखा यहां पर रखा है बीइंग हाईली प्राइस, बेटा इसकी प्लेटिनम क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से हाई कॉस्ट है, इसकी प्राइस हाई होती है तो उसको यूज में कम लिया जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव ज्यादा है। बीइंग हाईली प्राइस द नंबर ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन नोबल मेटल, क्योंकि बेटा इनका वैल्यू क्या होता है, कभी डाउन नहीं होता। इसलिए बेटा क्या होता है, शेयर मार्केट देखते हो तो बेटा क्या होता है, अपन किसमें लगाते हैं, जो मेटल्स जो प्रेशियस मेटल होती है या जिनका वैल्यू ज्यादा होता है उसमें अपन क्या करते हैं बेटा, अपना शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, बिकॉज दे आर द नोबल मेटल्स एंड ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम द स्पेशली इन अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। जब अपनी इकोनॉमी क्या होती है बेटा, अच्छे से वर्क नहीं करती तो बेटा अपन क्या करते हैं, अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर देते हैं, इन नोबल मेटल्स के अंदर, बिकॉज दे डज नॉट लूज देयर वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट, this is the content today we have to explain to you. You have any doubt in this content, just ask your queries and write the comment in comment box. Okay dear student.
Thank you for watching this class.